عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والا سبق جو کہ ایک سفر نامہ ہے، تاشقند اور بخارا، اسے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، جس کے مصنف ہیں، سفر نامہ نگار ہیں حکیم محمد سعید۔ حکیم محمد سعید کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ان کا قائم کردہ دواخانہ ہمدرد کے نام سے جو ہے وہ اکثر آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا۔ طب کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ طب اور انہوں نے بہت ساری اس پر تحقیق کرتے ہوئے کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ تو چلیے چل کر تھوڑا سا ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 81 پیج نمبر 81 پر موجود ہے۔ حکیم محمد سعید ولادت ہے ان کی 1920 اور وفات ہے 1998۔ حکیم محمد سعید دہلوی 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ پہلے قرآن مجید حفظ کیا، پھر عربی، فارسی اور انگریزی پڑھی۔ 1936 میں آیورویدک اور یونانی طبیہ کالج دہلی میں داخلہ لیا۔ 1939 میں طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا۔ ان کے والد محترم نے 1906 میں ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا انتظام ان کے بڑے بھائی کرتے تھے۔ انہوں نے دواخانے میں بھائی کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ 9 جنوری 1948 کو کراچی آ گئے اور اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ہمدرد کو ایک ایسا ادارہ بنا دیا جس کی نظیر اسلامی دنیا میں شاید ہی مل سکے۔ ہمدرد دواخانہ وقف، ہمدرد فاؤنڈیشن، طبیہ کالج، ہمدرد مکتب، ہمدرد لائبریری اور ہمدرد یونیورسٹی کا قیام ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کی سیاحت کی۔ کافی تعداد میں اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سفر نامے، طب اور اخلاقیات سے متعلق کتابیں شامل ہیں۔ انہیں 1998 میں کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ یورپ نامہ، جرمنی نامہ، درون روس دید و شنید، عجائبات جسم انسانی، مقالات شام ہمدرد، ابن الہیثم، اخلاقیات نبوی، خودی ایک مسافر، 4 ملک، تذکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میڈیسن ان چائنا اور ہیلتھ آف نیشن وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی انہوں نے نہ صرف طب پر کام کرتے ہوئے ان پر کتابیں تحریر کی، بلکہ جہاں جہاں یہ سفر کرتے رہے اور جو ان کے معلومات میں جو چیزیں آتی رہیں ان کے مشاہدات میں، وہ بھی جو ہے وہ قلم بند کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں۔ عزیز طلباء، ان کا تحریر کردہ تاشقند اور بخارا سفر نامہ دراصل ان کی کتاب درون روس دید و شنید سے اقتباس ہے۔ یہ ایک سفر نامہ ہے جس میں ازبکستان کا انہوں نے سفر کیا۔ دراصل تاشقند اور بخارا ازبکستان کے معروف اور تاریخی شہر ہیں، جو کہ علم و حکمت کے ایک مرکز ہوا کرتے تھے، تاشقند اور بخارا، اور یہ ازبکستان کے شہر ہیں۔ تاشقند ازبکستان کا دارالحکومت ہے اور بخارا وہاں کا علم و حکمت سے اس کا مرکز رہا ہے۔ اسی طرح اور دیگر شہر بھی ازبکستان میں۔ دراصل ازبکستان ملک ہے جو کہ جیسے کہ کاغستان، ترکمانستان اور افغانستان کے ساتھ اس کی سرحدیں لگتی ہیں۔ ازبکستان کے بارے میں بھی اسی سبق میں ہم مزید ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، تاکہ آپ کو ازبکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہو سکے۔ 11 نومبر 1989 کو صبح
आँख खुली तो ठीक 3:45 बजे थे। अब सोने का क्या सवाल, ये तो तहज्जुद गुज़ारी का वक़्त है। वाक़ई वो दौर भी क्या होगा जब ताशकंद मरकज़ इल्म व हिकमत के साथ मरकज़ शरीयत इस्लामी भी था। न जाने यहाँ कितने बुज़ुर्गान दीन होंगे, तहज्जुद का समा रहता होगा। अब इस शहर में शरीयत इस्लामी का दौर दौरा नहीं है। गो ये कहना सही नहीं है कि यहाँ इस्लाम का नामो निशान नहीं है। नाम है और ज़रूर है। यहाँ पर मुसलमान का नाम इस्लामी है। मिर्ज़ा यूब, शुकतूब, याकूब, ग़फ़ारूक, कदीम आबादी में मसाजिद भी हैं। वहाँ अज़ानों की आवाज़ें भी फ़िज़ाओं में बिखरती हैं और तहलील हो जाती हैं। नमाज़ी भी हैं, नमाज़ पर कोई कदख़न है, ना अज़ान पर कोई पाबंदी। कहते हैं कि अभी ये इस्लामी ही माहौल से आरास्ता शहर है। अब भी यहाँ पर नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है। लोगों के नाम भी इस्लामी हैं, अज़ानें भी गूंजती हैं। मैंने नमाज तहज्जुद अदा की और फिर लेट गया। नमाज फ़जर में 2-3 घंटे बाकी हैं। होटल के इस कमरे में ज़रूर कोई अल्लाह वाला ठहरा होगा और हो सकता है इसने यहाँ भी नमाज़ अदा की हों। अगर ऐसा पहले नहीं हुआ था तो आज तो हो ही गया। शायद कल यहाँ कोई अल्लाह का नाम लेने वाला आकर ठहरे से यहाँ मेरी गवाही मिले। इस होटल का माहौल निहायत दिलचस्प है। लोग आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सलाम सलाम भी रवायत है। मसलन आसिम साहिब अब खुद को आसमूफ कहते हैं। नामों में ऊफ का इजाफा रूसी असरअंदाजी का आईनादार है। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ने असर छोड़ा है। अक्सर व बेशतर बड़े लोग अपने नाम इसी अंदाज से लिखते हैं। एमएच आफंदी साहिब, मोहम्मद हुसैन आफंदी को जब अंग्रेज़ी अंदाज से लिखें तो यही कहा जाएगा कि अंग्रेज़ ने अपना असर छोड़ा है। पाकिस्तान के अक्सर व बेशतर बल्कि तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेटों के नाम आप निहायत गौर से देखें। पाकिस्तान की गुज़िश्ता तारीख़ में जिस कदर ब्यूरोक्रेट बरसर इक़्तिदार आए हैं, सबके नाम इसी अंदाज़ के हैं। शायद एक आध मिसाल ऐसी हो कि किसी ने अपना पूरा नाम लिखा हो। पाकिस्तान की हुकूमती ज़ुबान आज भी अंग्रेज़ी है। जब तक पाकिस्तान में हकीकी इस्लाम नहीं आएगा, पाकिस्तान से फ़रंगियत का इख़राज नहीं होगा। कुछ लोग दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान के क़याम की तारीख़ 27 रमज़ान मुबारक करें, मगर 14 अगस्त को बदलने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में शरीयत और इस्लामियत की राह में रुकावट ब्यूरोक्रेसी है। कहते हैं कि जिस तरह उज़्बेकिस्तान पर रूस का तसल्लुत था, तो रूस के तसल्लुत और उसके असर से वहाँ के लोगों में जो नामों का फ़र्क आया है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी फ़रंगियत यानी कि जो अंग्रेज़ों के जैसे या अंग्रेज़ों की तरह जो है वो उन्होंने अपने नामों को बदलने की कोशिश की है। जिस तरह एच आफंदी साहब जो हैं, मोहम्मद हुसैन जो हैं, तो वो एमएच आफंदी हो गए हैं, यानी कि उन्होंने अंग्रेज़ी के इब्तदाई जो हुरूफ हैं उनके को इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ी असर लेते हुए अपने नामों को मज़ीद मुख्तसर कर दिया है। इसी तरह और भी हमारे पास अंग्रेज़ी तसल्लुत अब तक कायम है। जैसे वो मिसाल दे रहे हैं उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी जहाँ अंग्रेज़ों का तसल्लुत था तो अंग्रेज़ अपना असर छोड़ गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो है आज़ाद तो इस्लामी तारीख़ देखी जाए तो 27 रमज़ान मुबारक को आज़ाद हुआ, लेकिन हम जश्न आज़ादी जो है क्योंकि उस दिन 14 अगस्त थी अंग्रेज़ी तारीख़, तो हम 14 अगस्त को ही उसको मनाते हैं। फिर कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान होटल में जहाँ मैं मुकीम हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे हॉल हैं कि जहाँ शाम से आधी रात होने तक शोर-ओ-गुल जारी रहता है। रक़्स व सुरूर की महफ़िलें रोज़ जमा करती हैं। जिस हॉल में हम खाना खाते हैं, वहाँ बैठकर 2 आदमी आपस में बात नहीं कर सकते। साज़ व आहंग पर गानों का शोर मुस्तज़ाद है, यानी कि मज़ीद है, ज़्यादा है, इज़ाफ़ा है। ये वो शोर है जिसके लिए तिब्ब व साइंस का कौल फ़ैसल है कि इससे आसाब का सुकून तबाह हो जाता है। मैंने मॉस्को में भी होटलों में रहकर हालात का मुताला किया है। मुझे यकीन है कि मॉस्को के किसी भी होटल में इस अंदाज़ व किस्म का शोर-ओ-गुल नहीं होता। वहाँ तवाज़ुन है और एतदाल है। कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान का जिस तरह एक रहन-सहन और वहाँ की माशरत बिल्कुल मुख्तलिफ होकर रह गई है, जहाँ पर इस्लाम का दौर दौरा था, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। अब वहाँ पे रक़्स व सुरूर ने जगह ले ली है और ये एक असाब के लिए भी हमारे जो ज़हनी जितने भी हमारी क़ुव्वतें हैं, उनके लिए भी ये नुकसानदेह साबित होता है। फिर आगे फरमाते हैं कि उज़्बेकिस्तान स्वीट सोशलिस्ट रिपब्लिक शुमाल में दरियाए सीखों और जनूब में दरियाए आमों के दरमियान वाक़या है। ये रूसी तुर्किस्तान की बाकी तमाम रिपब्लिकों से बड़ा है। इसका दारुल हुकूमत ताशकंद है।
समरकंद, बुखारा और खेवा इसके दूसरे मशहूर शहर हैं। थोड़ा सा उज़्बेकिस्तान की तारीख के हवाले से यहाँ पर बात कर लेते हैं और स्विस सोशल रिपब्लिक क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं, जिसका मौजूदा नाम जो है वो रशियन फेडरेशन है। ठीक है, मौजूदा नाम इसका अब जो है वो रूस का रशियन फेडरेशन है, लेकिन इसको दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है यूएसएसआर के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि रूस का जो पुराना नाम था, यानी कि यूनियन ऑफ स्विस सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम के बाद रूस और अमेरिका जो थे बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरे थे। रूस ने अपने तसल्लुत से बहुत सारी रियासतों को बज़ौर शमशीर जो है उसके साथ अपना इल्हाक कर लिया था, जो कि वस्ती एशिया की रियासतें थीं, जैसे कि कागिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान। इसी तरह जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की, वहाँ अपनी फ़ौजें उतारी, तो अंदरूनी तौर पर रूस जब कमज़ोर हो गया, जब उसका वो अपना बजट उसका खसारे में जाने लगा, तो 1991 में तमाम रियासतों ने रूस से जो है वो आज़ादी और रूस के तसल्लुत से ख़ुद को आज़ाद करवा लिया। यानी कि रशिया यानी कि रूस जो था वो तमाम इन वस्ती एशिया की रियासतों पर काबिज़ था, लेकिन 1991 के बाद जब रूस अंदरूनी तौर पर तोड़-फोड़ का शिकार हुआ, तो तमाम रियासतों ने ख़ुद को उसके तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि कागिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान और दीगर जो रियासतें शामिल थीं। अब ये रशियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी आबादी 1 करोड़ 85 लाख है। ये ताशकंद की बात हो रही है, जो उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसकी आबादी 1 करोड़ 85 लाख है। वादी फ़रगाना, जहाँ हिंदुस्तान का मुग़ल शहंशाह बाबर पैदा हुआ था, उज़्बेकिस्तान में है। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, यहाँ की सबसे बड़ी पैदावार हुई है। अनाज जिसमें चावल भी शामिल है, अंगूर, खरबूजे और दीगर कई फल और सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं। ताशकंद शहर 230 बरस पुराना है। बुखारा को किसी ज़माने में इस्लाम का किला समझा जाता था। सोवियत यूनियन में उज़्बेकिस्तान को मुआशी एतबार से ख़ास अहमियत हासिल है। उज़्बेकिस्तान जो है वो एक इस्लामी ममालिक में बहुत अहमियत का हामिल है। इसी वजह से जो है बाज़ क़ुव्वतें उस पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए हर वक़्त कोशां रहती हैं, क्योंकि वो मुआशी और तवानाई के लिहाज़ से और पैदावार के लिहाज़ से बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ पर काफ़ी मिक़दार में सोने को निकाला जाता है कानों से। इसके अलावा वहाँ पर कपास और की पैदावार और उसके अलावा गैस का जो वहाँ पर निकाली जाती है, वो पूरी दुनिया में उसकी जो है वो ज़्यादा मिक़दार में है। यानी कि कुदरती वसाइल से माला-माल उज़्बेकिस्तान जो है वो मुल्क है। ताशकंद में बकसर सुन्नी अक़ीदा मुसलमान हैं, यहाँ शिया भी हैं, मगर यहाँ शिया सुन्नी का कोई सवाल मौजूद नहीं है। मुझे बताया गया कि दोनों अक़ीदा रखने वाले लोग निहायत सेहत फ़िक्र और सलामती अक़ल के साथ मिलकर रहते हैं। उनकी इबादतें मुश्तरक हैं, ना अज़ान में इख्तिलाफ़ है, ना इबादत गाहों में कोई इम्तियाज़ है। मैंने ताशकंद में लोगों के लिबास गौर से देखे, उनके लिबास पर अब मग़रब की छाप है। यानी कि उनके लिबास में अब मग़रबी जो रंग-ढंग है वो शामिल है। इस्लामी लिबास से वो दूर हो चुके हैं। हम वज़ीर सेहत के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च गए, जहाँ इन नबातात पर गौर व फ़िक्र हो रहा था। एक निहायत दिलचस्प मुग़ालता ये रहा कि सुबह से जनाब मिर्ज़ा यूफ साहब मुझे कहते रहे थे कि आज शाम आप उलमा से मिलेंगे। मुग़ालता यानी कि ये उनको गलती रही। उनसे आप ख़िताब करेंगे, वो सवालात भी करेंगे, आप जवाबात के लिए तैयार रहिए। मेरे ज़हन में लफ्ज़ उलमा से यही आ सकता था कि मौलवी साहिबान होंगे। मैं सुबह से शाम तक ख़ुद को मौलवी साहिबान से गुफ्तगू के लिए तैयार करता रहा था। जब वज़ारत सेहत में वापस आए तो जनाब मिर्ज़ा यूफ साहब ने फरमाया कि उलमा जमा हो रही हैं, अब आपको ऑडिटोरियम में चलना है। अब तक भी मेरे तसव्वुर में मौलवी साहिबान थे, मगर जब ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद किसी के सर पर पगड़ी थी, ना अमामा, ना जबा। अब मैं समझ गया कि उलमा से मुराद अहले साइंस है। मैंने इनसे बातें करने के लिए फ़ौरन ख़ुद को तैयार कर लिया। अब हम ताशकंद से बुखारा रवाना हुए। बुखारा
ताशकंद उज़्बेकिस्तान का एक बहुत मशहूर शहर है। सुबह 7:30 बजे हवाई मैदान पर ये सहूलत मौजूद थी। ये फोकर जहाज़ था। बुखारा के हवाई मैदान पर सख्त सर्दी थी। बताया गया कि 2 सेंटीग्रेड है। हाथों का खून जम गया। इस शहर को इमाम बुखारी का वतन होने का एजाज़ और सआदत हासिल है। इमाम बुखारी के नाम से हम तमाम मुसलमान जो हैं बहुत बखूबी जो हैं वो हम उनको जानते हैं, जिनका असल नाम जो है वो मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम है। उनके वालिद का नाम इस्माइल बिन इब्राहीम था। हदीस के हवाले से हम उनको जानते हैं। उनको इमामुल मुहद्दिसीन और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने हदीस का इंतहाई मुस्तनद और ज़ख़ीम मजमूआ हमें दिया है, जो कि सही बुखारी के नाम से उन्होंने उसको तरतीब दिया है। सही बुखारी हम पढ़ते हैं, जो कि अहादीस का मुस्तनद मजमूआ है। तो उसके जो मुसन्निफ़ हैं इमाम बुखारी, वो बुखारा में पैदा हुए और इसी वजह से उनके नाम के साथ बुखारी लिखा जाता है। यहाँ 7वीं ईस्वी में मुसलमान आ गए थे। 1220 में चंगेज़ खान ने इसे बेदर्दी से बर्बाद किया था। चंगेज़ खान आपको पता है मंगोलिया से ताल्लुक़ रखता था और इंतहाई जंगजू इंसान था, जिसने जो कि मुसलमानों पर एक अज़ाब बनकर टूटा और उसने मुसलमानों के तमाम मुल्कों, अक्सरियत वाले मुल्कों को तबाह व बर्बाद करता हुआ, तमाम ममालिक पर फ़तह हासिल करता हुआ मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करता चला गया। ना सिर्फ़ मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों से वाबस्ता उनकी तारीख़ को भी उसने तबाह किया और इल्म व हिकमत के ख़ज़ानों को भी उसने तबाह कर डाला। 1868 में इस पर रूस का कब्ज़ा हुआ, यानी कि रूस ने बुखारा पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और बुखारा ही से रुई, रेशम और फलों के लिए मशहूर था। अशरे 1950 में यहाँ गैस दरियाफ्त हुई। यहाँ का पुराना शहर तंग गलियों और कदीम इमारतों की वजह से माज़ी की एक अहम यादगार था। शहर बुखारा से 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव अफशाना है। हमने इस गांव का रुख किया और बड़ी बेकरारी थी कि जल्द अफशाना पहुंच जाएं। ये वो खुशकिस्मत मकाम है जहां शहंशाह तिब और मुजद्दिद तिब बुअल सीना पैदा हुए थे। बुखारा के बतन खाकी से ऐसे इंसानों ने जन्म लिया कि जिनकी शोहरत आलमी दवाम हासिल कर चुकी है। इनमें एक इब्न सीना भी है। इब्न सीना को 1000 साल हुए। इनका 1000 साला जश्न 1980 में अफशाना में मनाया गया। इस जश्न आली में शिरकत के लिए दावतनामा मुझ आजिज़ के नाम भी जारी हुआ था, यानी कि हकीम मोहम्मद सईद को भी वहाँ पर मदऊ किया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अबू अली सीना जो हैं वो मुजद्दिद हैं तिब के, जिन्होंने बहुत सारे बीमारियों का इलाज दरियाफ़्त किया। उनकी किताब जिस पर उन्होंने बहुत काम किया, वो भी आजकल जो है यूरोप में जो है उसके हवाले से उसी को बुनियाद बनाते हुए पढ़ाया जाता है वहाँ के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में। इसी तरह तिब के हवाले से उन्होंने बहुत सफ़र करते हुए इलाज को दरियाफ़्त किया। उसने शाही कुतुबखाना भी उन्होंने वहाँ पर कायम किया बुखारा में। और इसी तरह उन्होंने, हम देखते हैं कि कानून फ़िक़्ह तिब एक किताब जो है उन्होंने लिखी तिब के हवाले से, जो यूरोप में भी जो है वो काफ़ी अरसे तक पढ़ाई गई। इसी तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज, जैसे रसोली का इलाज या ज़ियाबितिस का इलाज उन्होंने दरियाफ़्त किया था। इसके साथ-साथ बुअल सीना ने बुखारा के हुक्मरानों का भी इलाज किया और शाही कुतुबखाने तक भी रसाई हासिल की।
ہم سارا دن بخارا میں پھرتے رہے، دل کی عجب کیفیت تھی۔ 2500 سال اس شہر کی تاریخ ہے۔ اس شہر کا اسلامی دور نہایت دلچسپ تاریخ کا حامل ہے۔ علم و عرفان سے عبارت بخارا نے وہ دور بھی دیکھا جب اہل اسلام نے اپنی روایات کو ترک کر دیا، ان کے ہاں عیش و عشرت آ گیا، علم و حکمت کے مراکز خاموش اور سرد ہو گئے، تعمیر سے غفلت ہوئی، آزادی کی برکات کا تصور محو ہوا۔ شریعت اسلامی سے فرار، اللہ تعالیٰ سے بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدم محبت اور قوانین اسلام سے سرکشی جب بھی آتی ہے، زوال ضرور آیا ہے۔ روس اگر جابر تھا تو بخارا میں اس کے آنے کے حالات خود مسلمانوں نے اپنے عمل سے پیدا کیے تھے۔ اب بخارا روس کے زیر نگین ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں تو کہا مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جب انسان اپنی روایات سے دور ہٹتا ہے، اسلام سے دوری، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، تو دوسری جو قومیں ہوتی ہیں وہ اس پر اپنا تسلط جما لیتی ہیں۔ ان کو اس پر اپنا تسلط جمانے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی۔ نماز عشاء ادا کر کے بستر پر دراز ہوا تو سخت سردی کے باوجود میرے جذبات میں گرمی تھی۔ نیند کوسوں دور تھی۔ آج دن بھر جو کچھ دیکھا تھا وہ ایک اجڑی ہوئی تاریخ تھی۔ میں بخارا اور سمرقند کی اجڑی تاریخ میں خود کو لے گیا اور میرے دل نے کہا، سمرقند و بخارا کی یہ عظمت مٹ نہیں سکتی۔ یہ سفرنامہ درون روز دید و شنید سے ماخوذ تھا۔ اس کا ایک حصہ تھا۔ یاد رہے کہ موجودہ دور میں اب جو ہے وہ بخارا، ازبکستان، تمام ریاستیں روس کے اب زیر نگی نہیں رہی، وہ ان سے آزادی حاصل کر چکی ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی صفحہ نمبر 86 پر موجود اس کا مشقی کام ہے جس کو آپ نے خالی جگہ دیکھنی ہے۔ خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے آپ نے سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو آسانی سے آپ نے اس کو حل کر لینا ہے، پر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں محاورے کے حوالے سے جملوں کو درست کریں۔ یہ آپ کا تحریری کام نہیں ہے، یہ آپ کو اس کے نوٹس مہیا کیے جائیں گے اسکول کی جانب سے۔ تو آپ نے یہ سارا کام جو ہے نوٹس کو بھی بغور دیکھنا ہے اور اپنا مطالعہ جو ہے وہ روزانہ جاری رکھنا ہے۔